Hello students, welcome back to ISR Academy. This module will be the final concluding module for the chapter of control and coordination. In the previous modules, we discussed in detail about the different types of the nervous system. We also talked about the types of nervous system, which was CNS, ANS, PNS, and we talked about different types of integrative systems. We talked about sensory organs, that is eye, ear, and all of that. Now, when we talk about the concluding part of the chapter, this chapter mainly deals with something called as hormones. Okay. Now, hormones, when we talk about the word hormone is nothing but a chemical. Okay. Just let's put it out. Hormone is nothing but a chemical. Obviously, this chemical will have some function in our body, and that function is to just deliver the message from one point to another. Okay, so when the delivery mechanism happens in such a way that the point A is the source wherein the hormone will be produced or synthesized, and the point B will be target where this hormone needs to show its effect. Okay, so when we talk about hormones, अगर हमको hormones को define करना है, how can we really define hormones? So students, hormones, okay, hormone, the word hormone, as I said, is nothing but a chemical. Okay, it is a chemical. And what is the function of this chemical? This chemical is responsible for passing or in general transmission of, okay, of a signal. This can be any signal, it can be any effect. Okay, it can be any effect from one point to another. एक पॉइंट से सिग्नल ले लो और दूसरे पॉइंट पे उसको ड्रॉप कर दो. So students, when we talk about this, generally you should understand and know that points, इसमें ये जो पॉइंट ए होता है, दिस इज योर सोर्स. सोर्स का मतलब क्या है? जहां से हार्मोन प्रोड्यूस होगा. ठीक है. एंड जब मैं टारगेट के बारे में बात करता हूं तो दिस बिलोंग्स टू पॉइंट बी. तो पॉइंट बी इज नथिंग बट द टारगेट. Point B is target. So you have source and then you have target. इधर से पॉइंट ए से सिग्नल को लेना है, दैट इज हार्मोन को लेना है, जो भी इसका ये रहेगा उसको लेना है, एंड यू हैव टू पास इट टू पॉइंट बी, दैट इज द टारगेट. So this is the basic property of a hormone, and always hormones are very very target oriented. Okay, you should understand and know this, that whenever we understand in detail about hormones, hormones are always टारगेट ओरिएंटेड. टारगेट ओरिएंटेड का मतलब क्या है बच्चों? टारगेट ओरिएंटेड मतलब उनको क्या करना है, उनके इफेक्ट्स क्या है, ये उनको अच्छे से पता है, ये उनको एकदम बेटर तरीके से पता है, और उनको ये भी आइडिया है कि भाई कि उनका इफेक्ट कहाँ पे, कौन से ऑर्गन पे, कौन से टिश्यू पे उनको करना है. ठीक है. ये हॉर्मोन्स का केमिकल नेचर बहुत डाइवर्स हो सकता है. यू कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स. ओके, सो केमिकली दे कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. Say for example, they can be steroid hormones, they can be steroids, they can be proteinic. Okay, proteinic के अंदर भी you can have short peptide hormones, मतलब जिनका साइज छोटा है. then you can have long peptide hormones, तो ये भी हो सकता है. सो ऐसे मल्टीपल अलग अलग टाइप के हार्मोन्स आपको देखने को मिल सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट हार्मोन्स, जैसे कि मैंने बताया कि उसका इफेक्ट उसको क्या करना पड़ेगा, उसका इफेक्ट उसको बाकी सारे सेल्स तक पहुंचाना है ना, बाकी सारे सेल्स तक उसको डिलीवर करना है. तो डिलीवरी होगा कैसे? सो एक सोर्स रहेगा जहां से प्रोड्यूस हो हार्मोन, और एक टारगेट रहेगा जहां तक उसका इफेक्ट उसको दिखाना है. ये जो मैकेनिज्म है कि मान लो कि कोई डेस्टिनेशन पे आ गया हो, ठीक है, कोई टारगेट पे आ गया जहां पे उसको इफेक्ट उसका दिखाना है. इफेक्ट दिखाने के लिए सबसे पहले सेल रिस्पॉन्ड तो करना चाहिए. उस पर्टिकुलर हार्मोन को वो सेल रिस्पॉन्ड भी करना बहुत जरूरी है. in that case that cell needs to take the effect of that hormone. Okay, so now our cell can respond to these hormones in two different ways. Okay, दो अलग अलग तरीकों से हमारे सेल्स इन हॉर्मोन्स को रिस्पॉन्स करते हैं. नाउ दिस मैकेनिज्म्स आर सच कि जहां पे हम लोग ये बात करते हैं, हम लोग ये डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि हाउ इज द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन. ओके स्टूडेंट्स, सो चलो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट डिस्कशन, व्हिच इज द मैकेनिज्म
mechanism of hormone action, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। अब ये क्या है? ठीक है, हमारे पास दो टाइप के मैकेनिज्म्स हो सकते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहला मैकेनिज्म इज एक्शन ऑफ हार्मोन थ्रू इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स। इंट्रासेल्यूलर मतलब क्या? सेल के अंदर ना। पहला वाला जो डायग्राम है स्टूडेंट्स, मैं चाहूंगा कि आप वहां पे ध्यान दीजिए। पहला वाला डायग्राम देखो, अभी जो हॉर्मोन्स सेल के अंदर जा सकते हैं, देखो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है दैट इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिपिडिक। लिपिडिक मतलब क्या? वो लिपिड से बना हुआ है। अभी लिपिड से अगर बना हुआ है तो कोई भी मॉलिक्यूल जो लिपिड को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है वो वहां से उस मेम्ब्रेन से ट्रांसफर नहीं हो सकता। आपको समझ में आ रहा है? तो अगर वो ट्रांसफर नहीं हो सकता तो मतलब क्या कि उसको अंदर आने को परमिशन नहीं है। बट जो हार्मोन कि भाई जो लिपिड है, जो लिपिड को अट्रैक्ट करता है, लिपिड से रिएक्ट कर लेगा, लिपिड से उसको कोई हेट नहीं है, ऐसे सारे हॉर्मोन्स कैन एंटर डायरेक्टली इनटू द सेल। और स्टूडेंट्स, हम इसी हॉर्मोन्स का भी बात कर रहे हैं। द वेरी फर्स्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज थ्रू द इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स। इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स मीनिंग हॉर्मोन्स व्हिच कैन गो इनसाइड द सेल टू गिव द इफेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले अभी देखो हमारे पास ऐसे कौन से हार्मोन है जो सेल के अंदर जा सकते हैं? वो सारे हॉर्मोन्स, ओके, वो सारे हॉर्मोन्स जो कि स्टेरॉइडल है। Steroidal meaning which are made up of lipids, okay, which are made up of lipids. They can enter into the cell, वो सेल के अंदर आ सकते हैं। सो ये हॉर्मोन्स क्या करते हैं? ये हॉर्मोन्स जैसे टारगेट पे अपने पहुंच गए, टारगेट पे पहुंच गए, से फॉर एग्जांपल अपन ने अपने टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल लिया वही लेंगे। से फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग द हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ऑलरेडी वो चैप्टर खत्म किया है। एस्ट्रोजन जो है इट्स अ फीमेल सेक्स हार्मोन। ओके, इट्स अ फीमेल सेक्स हार्मोन। तो ये सेक्स हार्मोन जो है फीमेल का, दिस इज स्टेरॉइडल। ठीक है, तो एस्ट्रोजन क्या करेगा? दिस एस्ट्रोजन इज गोइंग टू एंटर, इट इज गोइंग टू एंटर द सेल। ठीक है, देखो एज यू कैन सी सेल के अंदर एंटर किया। सेल के अंदर जाने के बाद इट विल एंटर इनटू द न्यूक्लियस। ओके, इट विल एंटर इनटू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एंटर करने के बाद दिस हार्मोन, ओके, अपना जो एस्ट्रोजन है, वो जो हार्मोन है, दिस हार्मोन, this hormone binds to something called as hormone receptor. ओके, वो ना हार्मोन रिसेप्टर को बाइंड करता है। कैन यू सी? दिस इज द रिसेप्टर। एंड वंस द हार्मोन बाइंड्स टू द रिसेप्टर, हार्मोन रिसेप्टर, it is going to form something called as HRC. Now students, what is HRC? HRC का मतलब होता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। Now हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ये आपका जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स रहेगा, it is going to bind to the DNA. ओके, इट इज गोइंग टू बाइंड टू द डीएनए। एंड जैसे वो डीएनए को बाइंड करेगा, डीएनए को बाइंड करने का, तो डीएनए जो है वो सबसे पहला कोई केमिकल चेंज लाने वाले, जैसे ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, ट्रांसलेशन हो सकता है। सो देयर कैन बी एनी फॉर्म ऑफ अ केमिकल चेंज। ओके, and once the chemical change is done, then there will be something called as the physiological change. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो यहाँ पे हार्मोन जो है, हार्मोन आपका डायरेक्टली सेल के अंदर गया और उसने उसका इफेक्ट दिखाया, बाहर से उसको रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। ये सबसे पहला मैकेनिज्म जो इंट्रासेल्युलर सेल के अंदर का रिसेप्टर मैकेनिज्म। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा क्या है? दूसरा इज सेम एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। ओके, एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स through surface receptors.
सरफेस रिसेप्टर मतलब ये किन के लिए लगता होगा, बरोबर ऐसे सेल्स आई मीन जो ऐसे हॉर्मोन्स जो आपके सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकते, जो आपके सेल के अंदर जा नहीं सकते, ऐसे सारे हॉर्मोन्स को आप सरफेस पे ही रिसेप्टर दिए हो। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे ही रिसेप्टर दिया गया है ऐसे हॉर्मोन्स का जिनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड कंपोनेंट के साथ कोई भी इंटरैक्शन नहीं होगा। ऐसे टाइप के सारे हॉर्मोन्स को आपने सरफेस पे ही उसको अटैचमेंट दिया हुआ है। और सरफेस पे अटैचमेंट से फॉर एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में मान लो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो कि एफएसएच है। ओके, सो एफएसएच जैसे फॉर एग्जांपल एफएसएच, ठीक है ना। एफएसएच क्या करेगा, एफएसएच जो है इट इज नॉट गोइंग टू एंटर द सेल, इट इज गोइंग टू attach to the surface receptor। ठीक है, ये क्या करेगा, सरफेस रिसेप्टर को अटैच करेगा। देखिए जरा राइट साइड में डायग्राम में सरफेस रिसेप्टर को अटैच किया, द मोमेंट इट अटैचेस टू द सरफेस रिसेप्टर क्या बनने वाला है, जस्ट अ सेकेंड, क्या क्या बनने वाला है मुझे बताइए, चलिए फटाफट क्या बनने वाला है। देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज HRC, अगेन हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अभी हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जैसे बन गया, देखो अभी हार्मोन डायरेक्टली अंदर आ नहीं पा रहा बट उसको इफेक्ट फिर भी दिखाना है। तो इसने क्या किया, जो आपका हार्मोन है उसने सेल के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स को एक्टिवेट कर दिया जो कि उसका मैसेज न्यूक्लियस तक पहुंचा सकते हैं। बात को समझ रहे हो? तो ऐसा केमिकल जो ये इंफॉर्मेशन हार्मोन से न्यूक्लियस तक पहुंचा सकता है, दीज केमिकल्स आर कॉल्ड एज सेकेंडरी मैसेंजर्स, व्हिच मींस कि वंस द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड देयर विल बी generation of secondary messenger, and I will highly urge you that ये सेकेंडरी मैसेजेस के एग्जांपल्स आपको याद रखें ताकि आपका काफ़ी बेटरमेंट हो जाएगा इस मामले में। ठीक है, तो यू कैन जस्ट रिमेंबर इट। फॉर एग्जांपल अगर मान लो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 3 एग्जांपल्स यू हैव, जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव IP3, okay, one example, ionositol triphosphate. Then you have another example which is calcium, okay. Then you have CAMP, okay. So calcium है CAMP, cycling adenosine monophosphate. So you have IP3, calcium and CAMP which is CAMP. अब ये लोग क्या करेंगे, ये तीनों ये इंफॉर्मेशन इधर तक लेके जाएंगे, न्यूक्लियस तक लेके जाएंगे। न्यूक्लियस तक लेके जाने के बाद देयर कैन बी सम काइंड ऑफ केमिकल चेंज, ओके, केमिकल चेंज। और एक बार ये केमिकल चेंज हो गया उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देयर विल बी समथिंग कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल चेंज। ठीक है, फिजियोलॉजिकल चेंज। देखो यहाँ पे इस सेकंड वाले स्टेप में सिर्फ एक ही चीज ऐड हो रही है गाइस, एक ही चीज ऐड हो रही है। क्या ऐड हो रहा है, सेकेंडरी मैसेंजर। क्यों ऐसा, बिकॉज हार्मोन खुद ब खुद सेल के अंदर एंटर नहीं कर पा रहा, इसके कारण यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है आपको, सेकेंडरी मैसेंजर को जनरेट करना पड़ रहा है। देखिए जरा आपको समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। सो दिस इज वेरी शॉर्ट एंड सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हॉर्मोन्स दैट द our body responds to or acts in a certain way. Either it can be through intracellular receptors wherein the hormone will enter into the cell, or the mechanism could be through the surface receptors where the activation of that hormone will be through generation of secondary messengers and not directly. Although of course for secondary messengers to work you will definitely require primary messengers which are hormones, otherwise things will not be working. I hope you are able to understand what I am trying to say students. So this is one part of it, okay. अभी बढ़ते हैं दूसरे पार्ट पे which is none other than the pituitary gland, okay, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। So now let's move on to the pituitary gland. Now students pituitary gland ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया था पहले, बहुत पहले जब मैं डिस्कस कर रहा था हाइपोथैलेमस। तो ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड इट इज डाउनवर्ड
इट इज डाउनवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस का डाउनवर्ड आउटग्रोथ जो है वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड का सिग्निफिकेंस इतना ज्यादा क्यों है भाई, इतना ज्यादा क्यों है, कुछ याद है, कुछ बता पाओगे आप कि इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस क्यों है यहाँ पे? इसका सिग्निफिकेंस इसलिए है बिकॉज इट इज द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, और ये तुमको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर आपको पता रहेगा कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड का सिग्निफिकेंस क्यों है, बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड इट इज द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, इट इज अ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, कहां पे लोकेटेड है भैया? देयर इज अ कैविटी, ओके, एक छोटा सा कैविटी है ब्रेन के अंदर। सो इट इज लोकेटेड इन अ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि कैविटी है छोटा सा, और उस डिप्रेशन का नाम है सेला टर्सिका, ठीक है। उस डिप्रेशन का नाम है सेला टर्सिका। ये जो सेला टर्सिका है, आसपास इसके इर्द गिर्द एक हड्डी है जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रोटेक्ट करती है। सो सेला टर्सिका के अंदर का पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रोटेक्टेड बाय अ बोन which is called as sphenoid bone. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। स्पिनॉइड बोन प्रोटेक्ट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो दिस इज बेसिक। नाउ इसका जो सप्लाई है पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके, ब्लड सप्लाई, द ब्लड सप्लाई इज थ्रू हाइपोथैलेमस, ठीक है। ब्लड सप्लाई जो है वो हाइपोथैलेमस के थ्रू है, एंड द ब्लड सप्लाई इज हाइपोथैलेमो हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल hypothalamu hypophyseal portal system. Okay, now you must be wondering what is hypophyseal. Hypophyseal का मतलब होता है hypophysis. Hypophysis का मतलब technical word, medical word, biological word for pituitary gland. So मतलब there will be blood supply which will be provided by the hypothalamus to the hypophysis through a connection system which is called as the portal system. So this is the basic pituitary gland which you should be knowing. Okay, now when we talk about the pituitary gland, we have two lobes. Okay, so there are two lobes of pituitary gland. ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड के आपके पास दो लोब्स है। ये कौन से दो लोब्स है? देखो, सबसे पहला यू हैव एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, you have anterior pituitary gland. Then you have something called as posterior pituitary gland. Okay, so anterior pituitary gland और posterior pituitary gland, but definitely इसके technical words रहेंगे। Now anterior pituitary gland में यहीं पे लिख दे रहा हूँ, anterior pituitary gland is also called as adenohypophysis. Okay, it is adenohypophysis. दूसरा is what is called as न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। तो एडिनोहाइपोफाइसिस जो रहेगा उसको आप एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हो, और जो न्यूरोहाइपोफाइसिस रहेगा वो उसको आप बोलते हो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। द येलोइश कलर पार्ट इज कॉल्ड एज अ एडिनोहाइपोफाइसिस और एंटीरियर पिट्यूटरी, एंड द पोस्टीरियर पार्ट इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और न्यूरोहाइपोफाइसिस। ओके, नाउ इसके अंदर देखो, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का ये बेसिक, बट एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ना, हमेशा आपको एक चीज याद रखना है, पिट्यूटरी ग्लैंड इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो बहुत कुछ फंक्शंस करता है। अभी तक अपन ने बहुत सारे हॉर्मोन्स पढ़े। अरे अंडरस्टैंडिंग क्या बोल रहा हूं मैं? तो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड का जैसे फंक्शंस बहुत सारे हैं, जैसे मैंने बताया था कि भाई वो देखो बहुत सारे हॉर्मोन्स है ना, तो बहुत सारे हॉर्मोन्स को कंट्रोल करने का एक साथ जो कोलैबोरेटिव काम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड खुद कुछ हॉर्मोन्स रिलीज करता है, ग्रुप होता है मतलब, और दिस पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इट रिलीजेस सम हार्मोन, एंड दीज हार्मोन्स आर कॉल्ड एज स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स।
ठीक है, स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स। सो ये स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स क्या करते हैं, और अलग अलग ग्लैंड्स को, अलग अलग टिश्यूज को वो लोग स्टिमुलेट करते हैं, और स्टिमुलेट कर कर जो भी काम रहेगा हार्मोन का रिलीज करना वगैरह वगैरह, दे कैन डू दैट वर्क। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट पार्ट विच इज द हॉर्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। हॉर्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी जो फ्रंटल पिट्यूटरी पार्ट है उसके हॉर्मोन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हार्मोन रिलीज होता है विच इज कॉल्ड एज द GH। GH इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ हार्मोन। ओके, ग्रोथ हार्मोन। नाउ ग्रोथ हार्मोन, as the word is suggesting, growth hormone responsible for growth and development। ठीक है, डेवलपमेंट। इट कैन इंक्रीज द प्रोटीन सिंथेसिस। कुछ पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए, इट कैन इंक्रीज द प्रोटीन सिंथेसिस बिकॉज ये आपके हड्डियों को बढ़ाता है, ये आपके हड्डियों को डेवलप कराता है, ये आपके हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है, ये आपको हाइट को सपोर्ट करता है। सो दिस इज ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो रहता है, ग्रोथ हार्मोन अगर बाय चांस रिलीज नहीं हुआ या कम सिक्रेशन हुआ, ज्यादा सिक्रेशन हुआ, तो देयर कैन बी अबनॉर्मैलिटीज। अभी उस अबनॉर्मैलिटीज को भी देख लेते हैं। सबसे पहला देयर कैन बी हाइपोसिक्रेशन। ना स्टूडेंट्स, हाइपोसिक्रेशन का मतलब क्या है, जीएच का सिक्रेशन कम है। अगर जीएच का सिक्रेशन कम है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन होगा, दिस कंडीशन वुड बी डॉर्फिज्म। डॉर्फिज्म आई होप आपको पता होगा, हाइट ग्रो ही नहीं होता। ठीक है, हाइट ग्रो ही नहीं होता, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डॉर्फिज्म। ठीक है, और अगर ऑन कॉन्ट्ररी कुछ ज्यादा ही रिलीज हो गया, विच इज हाइपर सिक्रेशन। ओके, हाइपर सिक्रेशन। ना इन केस ऑफ हाइपर सिक्रेशन, देखो अडल्ट्स में हाइपर सिक्रेशन थोड़ा अलग है, बच्चों में अलग है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट हाइपर सिक्रेशन इन अडल्ट्स और व्हेन वी टॉक अबाउट हाइपर सिक्रेशन इन चिल्ड्रन, दोनों केसेस में बात करेंगे। हाइपर सिक्रेशन ऑफ जीएच इन अडल्ट्स is going to lead to what is called as acromegaly। एक्रोमेगैली, देखो एक्रोमेगैली थोड़ा अलग है बच्चों के केस में, बिकॉज एक्रोमेगैली में देयर इज डिसफिगरमेंट। बॉडी का हर एक हड्डी, बॉडी का हर एक बोन अपने एक्सेसिव स्पीड से मैच नहीं कर पाता, जिसके कारण डिसफिगरमेंट आता है। डिसफिगरमेंट मतलब सारे प्रपोर्शन में बोन्स ग्रो नहीं करते अडल्ट्स के केस में। अगर हड्डियां प्रपोर्शन में ग्रो नहीं कर रही है, इन दैट केस द कंडीशन इज कॉल्ड एज एक्रोमेगैली। ओके, बच्चों के केस में जो सेम कंडीशन है, इट कैन कॉज समथिंग कॉल्ड एज जाइजेंटिज्म। okay, so in children the condition is gigantism। are you understanding? so these are two important terms growth hormone के related। okay, अभी बढ़ते हैं गाइस सेकंड आपके हार्मोन पे। सेकंड हार्मोन इज कॉल्ड एज TSH। okay, what is TSH? TSH stands for thyroid stimulating, yes, thyroid stimulating hormone। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टूडेंट्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भैया क्या करेगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज गोइंग टू स्टिमुलेट योर थायराइड ग्लैंड, ओके, टू रिलीज टू हार्मोन्स। ठीक है, दो हार्मोन्स ये रिलीज करते हैं, जिसका नाम आपको बता रहा हूं मैं यहाँ पे। सो वन इज कॉल्ड एज T3, अनदर इज कॉल्ड एज T4। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी लिख दे रहे हैं यहाँ पे। T3 इज ट्राई आयोडो थायरोनीन। ओके, T3। T4 इज नथिंग बट टेट्रा आयोडो थायरोनीन। ठीक है, आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर मेटाबॉलिज्म। सो इट बेसिकली मेंटेन्स, आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है, इट मेंटेन्स समथिंग कॉल्ड एज BMR,
BMR इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं। So second guys is TSH, first was GH, okay. Moving on to the third, which is called as the ACTH, okay. Third जो है it is ACTH. Students, what is ACTH? ACTH stands for adrenocorticotropic hormone, okay. Adrenocorticotropic hormone. अभी ये क्या करता है, एक हमारे पास एक ग्लैंड है विच इज कॉल्ड एज अड्रीनल ग्लैंड। किडनी के ऊपर आप टोपी बनाते थे, टोपी ऐसा कैप जैसा स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाट इज अड्रीनल ग्लैंड। सो इट हैज इट्स रेगुलेशन ऑन द ग्लैंड विच इज कॉल्ड एज adrenal gland, okay, adrenal gland. अब this adrenal gland is important because adrenal gland के पास भी particularly जो है ACTH is only going to release regulate a part of adrenal gland which is called as adrenal cortex, okay. ये थोड़ा important हो जाता है, क्या function करता है आने वाले slides में we will discuss. Fourth, okay, fourth कौन सा है? Fourth regulatory is what is called as prolactin, which is also called as PL. देखो prolactin जो है ना, prolactin it is also called as a mammary hormone, ठीक है, जरा ध्यान देना, ठीक है। it is also called as mammary hormone. क्यों ऐसा स्टूडेंट्स, मैमरी हार्मोन क्यों बोला इसको? बिकॉज इसके दो फंक्शन है, इसके दो फंक्शन, फीमेल्स के अंदर दो फंक्शन है। इट कैन स्टिम्युलेट प्रोडक्शन of milk, okay, milk after delivery, and also ये एक ऐसा मतलब मिल्क का प्रोडक्शन तो कर ही सकता है, साथ ही साथ इट इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट हार्मोन विच इज प्रेजेंट इन फीमेल्स फॉर द प्रोसेस ऑफ मिल्क सिंथेसिस, ओके। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो दिस वाज प्रोलैक्टिन, कि जो आपको क्या करता है, मिल्क को स्टिमुलेट, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के लिए स्टिमुलेशन देता है इन केस ऑफ फीमेल आफ्टर प्रेगनेंसी और डिलीवरी, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू द फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द हार्मोन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड व्हिच इज कॉल्ड एज द FSH, ठीक है। FSH का फुल फॉर्म क्या है? FSH स्टैंड्स फॉर फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, okay, it is called as follicle stimulating hormone. अभी follicle stimulating hormone जो है ये basically करता क्या है? Follicle it is going to stimulate the formation of ovum, okay. Ovum is a female gamete, तो उसको stimulate करने का काम FSH करता है। Now, FSH is extremely important because during the developmental stages, जैसे मैंने human reproduction में बताया था कि primary follicle, primary से secondary follicle, secondary से tertiary, Graafian, वो सब, वो पूरा development FSH करता है। So follicle का development into mature ovum is initiated and conducted by the FSH. FSH के अंदर students you have one more category of hormone, one more thing which is called as LH, ठीक है। LH स्टूडेंट्स, LH क्या करता है? LH जो होता है ना, LH इट ब्रिंग्स अबाउट ओव्यूलेशन। ये सब चीजें अपन ने डिस्कस की हुई है ऑलरेडी। सो इट ब्रिंग्स अबाउट ओव्यूलेशन, ठीक है। ओव्यूलेशन कंडक्ट करता है और साथ ही साथ तुमको पता है कि एक बार मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल ओव्यूलेट ओवम से, मतलब ओवम बाहर निकलने के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल रहता है दैट गेट कन्वर्टेड इनटू समथिंग कॉल्ड एज कॉर्पस luteum, and this corpus luteum for temporary period of time can release a hormone which is called as progesterone, ठीक है। so this is important, ये फीमेल्स के केस में, ठीक है। अगर मान लो कि मेल्स के केस में अपने को डिस्कस करना है, तो इन मेल्स you have same FSH which can stimulate sperm formation,
तो स्पर्मेटोजेनेसिस जिसको बोला गया है वो प्रोडक्शन या फॉर्मेशन ये कर सकता है। ठीक है, एट द सेम टाइम इट ऑल्सो दिस मेल में एक दूसरा काउंटर हार्मोन होता है विच इज कॉल्ड एज ICSH which stands for interstitial cell stimulating hormone। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी भाई साहब ये जो हार्मोन है ना ICSH, ICSH इन अ वे इज इंपॉर्टेंट, क्यों पता है? जो ICSH होता है इट इज गोइंग टू व्हाट डू वी कॉल stimulate the cells of Leydig। कुछ याद है इसके बारे में? टेस्टिस के अंदर थे। ठीक है, सेल्स ऑफ Leydig टू रिलीज अनदर हार्मोन विच इज कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन। समझा? सो मेल्स में भी इसका काम है और FSH का काम जो है वो फीमेल्स में भी है। तो अपन ने देख लिया, अपन ने अभी तक क्या क्या देख लिया है भैया? अपन ने सारे एंटीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स अभी तक देख लिए हैं। नाउ स्टूडेंट्स मूविंग ऑन टू द हॉर्मोन्स ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यहीं पे लिख दे रहा हूं। सो नाउ वी हैव टू डिस्कस हॉर्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, हॉर्मोन्स ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इसमें दो ही है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस कुछ नहीं है। नंबर वन इज कॉल्ड एज ADH। ओके, ADH, ADH स्टैंड्स फॉर एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। दिस हार्मोन इज ऑल्सो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेजोप्रेसिन। ठीक है, इसको वेजोप्रेसिन भी बोला जाता है। करता कुछ नहीं, सीधे देखो, अंडरस्टैंड, इट कैन स्टिम्युलेट, ध्यान से सुनना, इट कैन स्टिम्युलेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, इट कैन स्टिम्युलेट वाटर, पानी को रीअब्जॉर्ब करता है। कहां से पता है? दो जगह से, दो जगह से। एक होता है जिसको बोलते हो DCT और दूसरा होता है CT। अभी तुम्हारे मन में सवाल आएगा, ये जो है ये नेफ्रॉन के पार्ट है गाइस। नेफ्रॉन पता है किडनी के अंदर, 11th स्टैंडर्ड, किडनी के अंदर होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, वहां पे। इट ऑल्सो एंड ऑन अ सेकेंडरी नोट इट कैन ऑल्सो कंट्रोल ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। वेजोप्रेसिन ना, वेजो मतलब वेसल और प्रेसिन मतलब कंस्ट्रिक्शन, सो ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। सो दिस इज फर्स्ट हार्मोन। सेकेंड हार्मोन जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, यू हैव व्हाट इज कॉल्ड एज ऑक्सीटोसिन। इसके बारे में बात किया था, ऑक्सीटोसिन इधर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या था? ऑक्सीटोसिन इज अ लेबर हार्मोन। क्यों उसको लेबर हार्मोन बोला है? बिकॉज इट ब्रिंग्स अबाउट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इट ब्रिंग्स अबाउट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है। एंड ऑल्सो ऑक्सीटोसिन इज मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, इट्स अ मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन ऑल्सो। सो इसके दो बेसिक, दो फंक्शंस। तो अभी तक अपन ने क्या क्या देखा? एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स देखे एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स देखे। अभी कुछ ग्लैंड्स है आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एड्रीनल है, पैनक्रियाज है एंड थायराइड है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में अभी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, चलो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज कॉल्ड एज द थायराइड। ओके, चलो फटाक से अपन देख लेते थायराइड। ओके, थायराइड स्टूडेंट्स, थायराइड की खास बात क्या पता है? थायराइड ग्लैंड इकलौता है, इट इज द ओनली ग्लैंड इन आवर एंटायर बॉडी व्हिच कैन स्टोर इट्स हार्मोन। खुद का वो हार्मोन ना खुद स्टोर कर सकता है। इकलौता ग्लैंड हमारे बॉडी में है जो आपका हार्मोन, उनके मतलब आपके अंदर का हार्मोन खुद ही ऑर्गन ग्लैंड अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ठीक है, उसके साथ साथ इसका लोकेशन जो है, इट इज लोकेटेड at the larynx। larynx, I hope you know, वॉइस बॉक्स, वहां पे इसका लोकेशन है। शेप, शेप बटरफ्लाई लाइक,
Okay, butterfly like, so it will be something like this, butterfly like. And butterfly like तो shape है, but साथ ही साथ this is bilobed. Bilobed meaning two lobe है, देखो जरा अभी जो मैंने बनाया 1 and 2, two lobes. Bilobed है, connected by something called as isthmus. isthmus जो दोनों lobes को connect करता है, ठीक है. When you take the cut section of the thyroid, it will be something like the TS transverse लेंगे. तो थायराइड, आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड shows many थायराइड फॉलिकल्स, बहुत सारे थायराइड फॉलिकल्स वो दिखते हैं. थायराइड फॉलिकल इन शॉर्ट सेल्स समझ लीजिए, ओके. और ये थायराइड फॉलिकल्स जो रहते हैं, इट इज फिल्ड विद अ लिक्विड. सो देयर इज अ लिक्विड हियर, देयर इज अ लिक्विड, एंड दिस लिक्विड, इस लिक्विड को आप बोलते हो कोलॉइड, ठीक है. इसको कोलॉइड बोला जाता है, कोलॉइड. एंड इसका जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म जैसे समझ लीजिए, तो देयर इज अ fluid in between the thyroid follicles, and this fluid present in between the thyroid follicles is nothing but stroma. ठीक है, इधर तक बेसिकली समझ में आ रहा है. तो ये बेसिक थायराइड के बारे में. अभी जरा समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है. अब ये जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड मेनली दो हार्मोन्स बनाता है. इट इज अंडर द रेगुलेशन ऑफ TSH. अभी वापस से बताने का जरूरत नहीं. इट synthesizes two hormones, दो हार्मोन्स, ओके. एंड ये एक होता है जिसको T3 बोला गया है, और एक है जिसको T4 बोला गया है. T3 को क्या बोला था, ट्राई आयोडोथायरोनिन. T4 को क्या बोला गया था, टेट्रा आयोडोथायरोनिन. एंड T4 इज ऑल्सो कॉल्ड एज थायरोक्सिन, ये दूसरा नाम उसका, ठीक है. किससे बनता है, इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ हार्मोन. इट रिक्वायर्स वन अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड लगता है. इस अमाइनो एसिड का नाम है टायरोसिन. एक अमाइनो एसिड है टायरोसिन, इसका एक लगता है आपको. साथ ही साथ टायरोसिन के साथ साथ यू ऑल्सो रिक्वायर आयोडीन. अगर आपने 3 आयोडीन लिए तो क्या बनेगा, T3. अगर आपने 4 आयोडीन लिए तो बनेगा T4. T4 से एक आयोडीन निकाल देंगे, T3 बनता है. मुद्दा समझे. T4 से एक आयोडीन निकाल दीजिए, T3 बन जाएगा. तो बेसिक इसके फंक्शंस क्या क्या है स्टूडेंट्स, चलो वो डिस्कस कर ले फटाफट. बिना लेट्स, इधर ही मैं लिख दे रहा हूँ फंक्शंस. नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट, इट मेंटेन्स द BMR. मैंने बताया था BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट. सी बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब क्या है गाइस, कि जहाँ पे आपका सेल कितना इफेक्टिवली डे टू डे काम कर रहा है, ओके. डेली एक्टिविटीज पे आपका सेल कितना फंक्शन कर रहा है, दैट इज नथिंग बट द BMR. वो जो BMR है वो जितना ज़्यादा पिकअप रहेगा और जितने सेल्स एक्टिव रहेंगे उतना आपका वेट मेंटेन होता है. अगर आपके सेल्स का BMR बहुत कम है, आपका बॉडी का BMR बहुत कम है, तो यू जनरली पुट ऑन वेट, ओके. और आपका अगर बॉडी का BMR काफ़ी फास्ट है, then in that case what will happen, you will not be able to put weight, or you will have very difficulty in putting on weight, because your cells are oxidizing each and everything whatever you're consuming, so there's no scope of storage. So BMR extremely important, maintained by the thyroid. Second, it can also stimulate RBC production, RBC red blood cells, okay. red blood cells का production भी हो सकता है. It is also concerned with cardiovascular system, ठीक है. सो BMR को भी मेंटेन करता है, RBC के प्रोडक्शन को भी हेल्प करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भी मेंटेन करता है. तो कुछ जो फंक्शंस जो इंपॉर्टेंट है वो तुमको यहाँ पे मैंने बता दिए. सो ये बेसिक 2-3 फंक्शंस आपको पता होना जरूरी है. बाय चांस अगर थायराइड में कुछ इश्यूज हो गए, देन भैया क्या करेंगे थायराइड में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एबनॉर्मेलिटीज. दैट इज फर्स्ट विल टॉक अबाउट द हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स.
सो सबसे पहले देखते हैं हाइपोसिक्रेशन, ठीक है, कम सिक्रेशन। सबसे पहला हाइपोसिक्रेशन अगर हुआ, वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम दैट कुड अराइज इज व्हाट इज कॉल्ड एज सिंपल गॉइटर, ठीक है, सिंपल गॉइटर। ये सिंपल गॉइटर भैया क्या है, कुछ नहीं है, इट इज आयोडीन डेफिशिएंसी, ठीक है, आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन डेफिशिएंसी होने के कारण क्या हो गया, साइज ऑफ द थायराइड ग्लैंड इंक्रीज्ड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ गया। अभी वो इतना गला कभी कभी सूज जाता है, दैट इज एन इंडिकेशन दैट द पेशेंट इज हैविंग सिंपल गॉइटर। क्या कर सकते हैं भाई, नमक जो है उसके अंदर आयोडीन का कंटेंट होना बहुत जरूरी है, तो दिस इज सिंपल गॉइटर। देन यू कैन हैव व्हाट इज कॉल्ड एज क्रिटिनिज्म, ये थोड़ा अलग है। क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म क्या है, क्रिटिनिज्म अगर बाय चांस डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के दौरान डेफिशिएंसी आया तो प्रेगनेंसी के बाद बेबी में सफर, और बच्चे को जब वो कंडीशन होगा बच्चों में तो उसको क्रिटिनिज्म बोलते हो। क्यों ऐसा अलग है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आता है। वन, फिजिकल चेंज, ओके, फिजिकल स्ट्रक्चर में कुछ डिफॉर्मिटी आपको देखने को मिल सकता है। देन देयर कैन बी मेंटल चेंज, मतलब मेंटल रिटार्डेशन वगैरह, लो आईक्यू एंड ऑल ऑफ दैट। एंड देन देयर कैन बी सेक्सुअल चेंज, मतलब सेक्सुअल हार्मोन से रिलेटेड। ये तीन चीजें बच्चों में देखने को मिल सकती है। तीसरा वर्जन इसका हाइपोसिक्रेशन का विल बी मिक्सोडीमा। मिक्सोडीमा कुछ नहीं, डेफिशिएंसी इन अडल्ट्स, ठीक है। सो दिस इज deficiency of thyroid hormones in अडल्ट। अगर अडल्ट में हुआ तो आपको मिक्सोडीमा देखने को मिल सकता है, ठीक है। अभी मिक्सोडीमा हाइपोसिक्रेशन है, मतलब वेट गेन, वो सारा चीज़ें आपको यहाँ पे दिख सकता है। लो बीएमआर, वेट गेन, देन हार्ट पैल्पिटेशंस, एक्सट्रीम हार्ट रेट एंड ऑल ऑफ दैट प्रॉब्लम्स यू कैन फाइंड आउट। So this is your hyposecretion, okay. Next, then we move on to hypersecretion, ठीक है, hypersecretion। नाउ ये hypersecretion भैया इसके अंदर एक है, ठीक है, which is called as exophthalmic goiter, exophthalmic goiter also called as Graves disease, okay। इसके अंदर क्या, इसके अंदर देयर कैन बी हाइपरसिक्रेशन है बहुत ज्यादा, तो देयरफॉर देयर विल बी प्रोट्रूडिंग आईज, प्रोट्रूडिंग मतलब बाहर आंखें ऐसी बाहर आती है, ठीक है। एंड दिस इज वेयर द सिक्रीशंस आर एक्सटेंसिवली हाई। अगर बहुत हार्मोन ज्यादा है तो देयर विल बी रैपिड वेट लॉस, ओके, देयर कैन बी रैपिड वेट लॉस, तो वेट लॉस भी देखने को मिल सकता है। तो थायराइड के बारे में हाइपोसिक्रेशन, हाइपरसिक्रेशन एंड देन द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थायराइड, ठीक है। अभी गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट इस पे, व्हिच इज कॉल्ड एज द थाइमस। सो नाउ विल मूव ऑन टू द थाइमस ग्लैंड। हमें कुछ नहीं है, ये नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करना है थाइमस के बारे में डिटेल, अभी जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। थाइमस यू हैव थाइमस, ओके, अच्छा, ओके। थाइमस से पहले काम करते हैं, थाइमस से पहले अपन ना क्या करते पता है, ये थायराइड के बीच में ना, इधर ही लिख दे रहा हूँ फिर, ठीक है, इन बिटवीन द थायराइड फॉलिकल्स, सो इन बिटवीन द थायराइड फॉलिकल्स, ओके, थायराइड फॉलिकल्स के बीचों बीच you have something which is called as parafollicular cells, it is called as parafollicular cells। ये जो पैराफॉलिकुलर सेल्स है ना, पैराफॉलिकुलर सेल्स, these parafollicular cells are also called as C cells, C cells। क्यों ऐसा, बिकॉज ये अलग हार्मोन रिलीज करते हैं, क्या ये हार्मोन रिलीज करते हैं, इस हार्मोन का नाम क्या है, they release a hormone which is called as calcitonin,
ठीक है, कैल्शिटोनिन। कैल्शिटोनिन क्या करता है, कैल्शिटोनिन जो है, कैल्शिटोनिन इट मेंटेन्स ब्लड कैल्शियम लेवल। ठीक है, ये ब्लड कैल्शियम लेवल मेंटेन करता है, मतलब ये क्या करता है, कैल्शिटोनिन विल डिपॉजिट कैल्शियम फ्रॉम ब्लड टू बोन्स। ठीक है, ये ब्लड से बोन में डिपॉजिट कर देगा। एक फंक्शन अभी के लिए याद रखिए, थायराइड ग्लैंड को जैसे आप टिल्ट करते हो पीछे, यू हैव अनदर ग्लैंड व्हिच इज कॉल्ड एज द पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, सो टिल्ट करेंगे तो आपको समझेगा कि दूसरा ग्लैंड है व्हिच इज कॉल्ड एज पैराथायरॉइड ग्लैंड। ये पैराथायरॉइड ग्लैंड, ये पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है, पैराथायरॉइड, इट रिलीजेस which is called as PTH, which is PTH का मतलब क्या है, PTH का मतलब है पैराथ हार्मोन। ठीक है, पैराथ हार्मोन, ये एग्जैक्टली उल्टा है। पैराथ हार्मोन जो है, पैराथ हार्मोन इट इज, इधर लिख रहा हूं, इट इज एंटागोनिस्टिक टू कैल्शिटोनिन। मतलब ये क्या करता है, इट पीटीएच जो रहेगा, पीटीएच इट इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल। ब्लड का कैल्शियम लेवल कैसे बढ़ पाएगा, हड्डियों से। ओके, डिपॉजिट्स कैल्शियम फ्रॉम बोन टू द ब्लड। ठीक है, अब इसमें कंडीशंस हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हाइपोसिक्रेशन आया, ठीक है, अगर सिक्रेशन कम है तो कैल्शियम लेवल घट गया, तो हाइपोसिक्रेशन ऑफ पीटीएच, जहां पे पैराथ हार्मोन कम है और ब्लड का कैल्शियम लेवल घट गया, सॉरी, इट कैन कॉज यू व्हाट इज कॉल्ड एज हाइपोकैल्सिमिक टिटैनी। मतलब टिटैनी, आई होप यू नो, टिटैनी इज रैपिड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस, इरिटेशंस एंड ऑल ऑफ दैट, ये सारा आपको देखने को मिल सकता है। और इन दैट केस ये हाइपोसिक्रेशन का केस हो गया कि जहां पे टिटैनी आपको देखने को मिल सकती है। अगर बहुत ज्यादा कैल्शियम आ गया ब्लड में तो बोन्स विल बिकम पोरस, bones can become porous, so that can also be a condition or a problem. This is all about parathyroid gland, जिसके जितना पता होना चाहिए उतना आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट ग्लैंड स्टूडेंट्स जो है which is called as the थाइमस ग्लैंड। देखो थाइमस ग्लैंड को नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करना है, तो अभी के लिए मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूँ। थाइमस जो है ना, थाइमस इट इज मेन ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है इम्यून सिस्टम का। ऐसा क्यों पता है सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्यों है, बिकॉज इट हेल्प्स इन मैचुरेशन ऑफ टी सेल्स। ठीक है, टी सेल्स, ये जो टी सेल्स होते हैं ना, टी सेल्स, इनको आपको बॉडी सर्कुलेशन में बताया था मैंने, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का एक टाइप, फंक्शन आने वाले मॉड्यूल्स में, लेक्चर्स में कवर करेंगे। ठीक है, बस इतना यहाँ पे याद रखना है, इतना याद रखना है, इट इज द ओनली ग्लैंड, it is the only gland which degenerates with age। उम्र के साथ साथ ये ग्लैंड डीजेनरेट होता है, जिसके कारण इम्यून सिस्टम भी आपका कमजोर पड़ सकता है। ठीक है, ये रहा तुम्हारा थाइमस। तो थाइमस हुआ, पैराथायरॉइड हुआ, थायरॉइड हो गया। अभी अपन जाते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे विच इज कॉल्ड एज द एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
एड्रीनल ग्लैंड। नाउ स्टूडेंट्स, एड्रीनल ग्लैंड जो है, एड्रीनल ग्लैंड जैसे मैंने बताया था, लोकेशन क्या है इसका, हाँ राइट, सो इट इज लोकेटेड अबाव द किडनी, ठीक है। एंड एड्रीनल ग्लैंड हैज टू लेयर्स, आई मीन टू रीजन्स रादर, आई वी कैन से। दो रीजन्स है, वन इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, अनदर इज कॉल्ड एज मेड्यूला, ठीक है। तो कॉर्टेक्स को भी अच्छे से पढ़ेंगे, मेड्यूला को भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन कॉर्टेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट adrenal cortex. Okay, adrenal cortex guys has 3 layers. Okay, adrenal cortex के पास 3 लेयर्स है। कौन से सबसे पहला है जोना ग्लोमेरुलोसा, okay, पहला लेयर, ठीक है। देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज जोना fasciculata, ठीक है। देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज जोना रेटिक्युलरिस, ठीक है। सो यू हैव जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना fasciculata एंड जोना रेटिक्युलरिस, ठीक है। 3 लेयर्स है, इसके बारे में वन बाय वन हर एक लेयर्स के बारे में डिस्कशन अभी चालू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे अपन जोना ग्लोमेरुलोसा, अपन किसके अंदर है, एड्रीनल कॉर्टेक्स में गाइस। तो ये पूरा ACTH कंट्रोल कर रहा है इसको। सो जोना ग्लोमेरुलोसा, इट रिलीजेस a group of hormones which is called as mineralocorticoids, ठीक है। एक हार्मोन रिलीज करता है, उसका नाम मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड में सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जो आपको पढ़ना है इज व्हाट इज कॉल्ड एज अल्डोस्टेरॉन, ठीक है। अल्डोस्टेरॉन की खास बात पता है क्या है? अल्डोस्टेरॉन जो है ना, अल्डोस्टेरॉन इट इज अ सॉल्ट और सोडियम रिटेंशन हार्मोन। मतलब ये क्या करता है, ये ना सोडियम को एब्जॉर्ब करता है, नेफ्रॉन में जाएगा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड में जाएगा या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जाएगा, और वहां से ये भाई साहब जो रहेंगे वो सोडियम को एब्जॉर्ब करते हैं। और सोडियम एब्जॉर्ब होने की वजह से देयर विल आल्सो बी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन होने के कारण देयर विल बी इंक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम, मतलब ये ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है, ठीक है। ये ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाएगा ऐसा, ठीक है। सो दिस इज जोना ग्लोमेरुलोसा। यहाँ पे मैंने उसका कट सेक्शन लिया है, समथिंग लाइक दिस। 3 लेयर्स यू हैव कॉर्टेक्स के अंदर 3। तो अभी अपन पहला वाले लेयर पे है, अभी नेक्स्ट वाले लेयर पे जाते हैं विच इज कॉल्ड एज सेकेंड लेयर विच इज जोना fasciculata। नाउ जोना fasciculata, ठीक है। अब ये जो जोना fasciculata है वो क्या है? जोना fasciculata अगेन it releases a group of hormone called as glucocorticoids, ठीक है। वो क्या रिलीज करते हैं? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ये रिलीज करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जो है इट इज कॉल्ड एज कॉर्टिसोल। एंड बात बताओ, कॉर्टिसोल जो है ना, कॉर्टिसोल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। स्ट्रेस हार्मोन, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है, और ये इमरजेंसी में एक्टिवेट होता है। इट कैन कॉज मल्टीपल डिफरेंट फंक्शंस। इट हैज इट्स इफेक्ट, इधर लिख रहा हूँ, इट हैज इट्स इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग द ब्लड शुगर लेवल, ओके। ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है। साथ ही साथ इट कैन ऑल्सो इंक्रीज लिपिड ब्रेकडाउन, ठीक है। It can also increase I mean you can say it is immunosuppressive मतलब आपका इम्यून सिस्टम को लोअर कर देता है, okay? It is immunosuppressive
and it is anti-inflammatory. एंटी-इन्फ्लेमेटरी। ठीक है, ये कुछ बेसिक फंक्शंस कॉर्टिसोल के स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है, याद रखने का। ठीक है, दिस इज बी। भी स्टूडेंट्स सी क्या है भाई? सी है आपका विच इज कॉल्ड एज जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, जोना रेटिकुलरिस। अब ये जोना रेटिकुलरिस जो है दे रिलीज again the group of hormones which is called as gonadocorticoids। ठीक है, गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स। इसके अंदर दो, बिकॉज गोनाडो मतलब सेक्स हॉर्मोन्स, सो मेल्स के अंदर यू हैव समथिंग कॉल्ड एज एंड्रोजन्स और यू इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरॉन। ओके, एंड फीमेल्स के केस में इट विल बी, यस, इट विल बी एस्ट्रोजन। ठीक, so either it can be androgens or it can be estrogens। okay, कुछ भी abnormalities आया or reduced secretion or increased secretion, so there can be any kind of abnormalities, can cause, अगर in case of females रहेगा तो it can be hirsutism or it can be virilism। मतलब क्या कि भाई फीमेल कैन बिकम्स कंप्लीटली स्टेराइल, फीमेल्स के केस में देयर कैन डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड्स एंड मुस्टैचेस। अगर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो गया तो वो सारा प्रॉब्लम हो सकता है। मेल्स के केस में इट कैन बी, देयर कैन बी कंडीशन कॉल्ड एज गायनेकोमेस्टिया व्हिच इज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल्स। सो मैं जो जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वही बता रहा हूँ, इसके अलावा भी डेफिनेटली फंक्शंस है। मेल्स में अगर एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा, फीमेल्स में अगर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होगा तो oogenesis नहीं होगा। सो मल्टीपल फंक्शंस है, बट जितना आपको पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उतना बता रहा हूँ, और बाकी सारे पॉइंट्स अपन ने ऑलरेडी वहाँ पे कवर किए हुए हैं। सो यहाँ पे वापस रिविजन नहीं होगा। अगर आपको रेफर करना है प्लीज़ वो वाले मॉड्यूल पे आप जाके एक बार विजिट करिए। सो इसकी वजह से रिप्रोडक्शन के मॉड्यूल में से, सो दिस इज ऑल 3 लेयर्स। ओके, you have zona glomerulosa, then you have zona fasciculata and zona reticularis। ठीक है, अभी अपन जाते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स पे थे, अभी अपन जाते हैं एड्रीनल मेड्यूला पे। ठीक है, नाउ गोइंग ऑन टू एड्रीनल मेड्यूला। एड्रीनल मेड्यूला दो हार्मोन रिलीज करता है, ये डायरेक्ट कंट्रोल है नर्वस सिस्टम का। इट रिलीजेस 2 हार्मोन्स, बताया था ऑलरेडी इसमें, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। हाँ बराबर, एक था एड्रेनालिन, दूसरा था नॉरएड्रेनालिन। नाउ एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 3F। याद है, फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट, वही वो सेम काम कर रहे हैं। So it can cause you heart rate increase, blood pressure increase, then bronchodilation, increased respiratory rate, goosebumps, inhibition of micturition, peristalsis। वो सारे फंक्शन ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, तो इस पे वापस वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा। तो एड्रिनल मेड्यूला 3F करते हैं एंड बाकी कॉर्टेक्स। आई होप दिस फिनिशेस विद द एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, अब दूसरा क्या बच जाता है? नाउ द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट वुड बी द पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज। तो चलिए फटाक से आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। नाउ मूविंग ऑन टू द पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज। अभी पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाज इसका एक फेमस चीज है भाई, इट इज मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड मतलब क्या भाई? ये ना एक्सोक्राइन भी है और ये एंडोक्राइन भी। अपन तो अभी एंडोक्राइन के बारे में बात कर रहे हैं, बट ये दोनों है, ये दोनों है। इसमें एंडोक्राइन जो है, एंडोक्राइन, ये जो एंडोक्राइन है इसके बारे में अपन बात करें, बिकॉज 99% ये है बट 1% ये है। एंडोक्राइन पैनक्रियाज, एंडोक्राइन पैनक्रियाज के सेल्स को अपन बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। सॉरी, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसके पास 4 टाइप्स ऑफ सेल्स है। 4 टाइप के। सबसे पहला अल्फा सेल। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट डज अल्फा सेल डू? अल्फा सेल जो होते हैं, अल्फा सेल
they release they release a hormone which is called as glucagon. ठीक है, ग्लूकागॉन. ग्लूकागॉन क्या करता है? यस, ग्लूकागॉन जो है इट इंक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल. कैसे बढ़ाएगा ये? कैसे बढ़ाएगा? लिवर में जाएगा, लिवर में जाएगा, लिवर के अंदर के ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में. ओके, ये सेम चीज ये भैया मसल में भी कर सकते हैं, मसल में भी कर सकते हैं, ये अल्फा. ठीक है, दूसरे टाइप का सेल जो है विच इज कॉल्ड एज द, यस, दूसरे टाइप का सेल इज कॉल्ड एज द बीटा सेल्स. बीटा सेल, ये जो बीटा सेल होते हैं, बीटा सेल रिलीजेस अ हार्मोन कॉल्ड एज इंसुलिन. इसके बारे में तो बहुत सुना होगा, अभी नेक्स्ट चैप्टर में भी सुनना है. इंसुलिन भाई साहब, जो इंसुलिन है ना, इंसुलिन ये ना ब्लड शुगर को घटाता है. ये ब्लड शुगर को घटाता है. कैसे घटाएगा? कैसे घटाएगा? इट विल इंक्रीज द सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज. ओके, सेल्स को बोलेगा ग्लूकोज का कंजम्पशन बढ़ा दो, और एल्स इट कैन स्टोर इन लिवर, or it can store in muscles in the form of glycogen. ठीक है, अगर इस हार्मोन में कुछ ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, अगर हाइपोसिक्रीशन आया, हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, हाइपोसिक्रीशन आया इंसुलिन का, तो फिर इन दैट केस यू कैन हैव अ कंडीशन विच इज कॉल्ड एज डायबिटीज मेलाइटस. यस स्टूडेंट्स, यही आपका शुगर डायबिटीज होता है, शुगर डायबिटीज. ये दो टाइप का हो सकता है. दिस हाइपोसिक्रेशन इंसुलिन का जो डायबिटीज मेलाइटस, टू टाइप्स का. नंबर वन इज कॉल्ड एज टाइप वन विच इज कॉल्ड एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस. ठीक है, इसके अंदर देयर इज रिड्यूस्ड इंसुलिन. ठीक है, इंसुलिन कम है, इधर आपको ट्रीटमेंट में इंसुलिन का इंजेक्शंस या दवा देना पड़ेगा. ठीक है, इंसुलिन कम है, इसके वजह से ग्लूकोज अपटेक ही नहीं हो रहा. दिस इज टाइप 1 डायबिटीज. द सेकंड इज कॉल्ड एज टाइप 2 व्हिच इज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस. ठीक है, इसके अंदर क्या है? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंसुलिन रेजिस्टेंस. मतलब इंसुलिन बहुत सारा है बट सेल्स उसको यूज नहीं कर रहे हैं. कब टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है? इन केस ऑफ ओबेसिटी. ठीक है, ओबेसिटी के केसेस में जहाँ पे इंसुलिन तो है बट सेल्स जो है ना वो यूटिलाइज नहीं कर रहे उसको. तो ये वेट गेन का प्रॉब्लम, ओबेसिटी का प्रॉब्लम, उस केसेस में कोई देखने को मिल सकता है. बेटर सोल्यूशन क्या रहेगा? इंसुलिन देख के चलेगा नहीं, यहाँ पे आप वेट लॉस करिए फटाफट, आपका ये रिवर्सिबल पॉसिबल, मतलब ये जो कंडीशन है टाइप 2 डायबिटीज, ये रिवर्स हो पाएगा इन अ वेरी गुड सिचुएशन. सो अल्फा सेल, बीटा सेल, तीसरा वाला सेल जो है इट इज कॉल्ड एज गैमा, गैमा और डेल्टा. ठीक है, ये जो भाई साहब होते हैं, it releases a hormone which is called as somatostatin. ये somatostatin क्या है? it maintains, इधर लिख रहा हूं, it maintains balance between glucagon and insulin. ठीक है, बैलेंस मेंटेन करके चलता है. ठीक है, चौथे टाइप का सेल जो है गाइस, चौथे टाइप का सेल इज पीपी सेल्स और द पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड. ठीक है, PP cells or pancreatic polypeptide. Now they are generally concerned with digestion. So हम लोग इसको ना इसके अंदर अपन गिनते नहीं है, अपन सिर्फ और सिर्फ अल्फा, बीटा और डेल्टा को देखते हैं. अल्फा, बीटा और डेल्टा, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ. ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है अल्फा, बीटा, डेल्टा. और एक चीज़ आपको याद रखना है कि भाई
ये तीन हार्मोनल लेवल पे और डाइजेशन से, ये जो पीपी वाले सेल है वो डाइजेशन से रिलेटेड होते हैं, तो अपन इसको इस चीज़ में डिस्कस नहीं करते, बट जनरली पता अगर इंफॉर्मेशन चाहिए रहेगा, सो इट कैन इनहिबिट द पैनक्रियाटिक जूस का सेक्रीशन. Okay, students, so this is what it is and all about pancreas particularly. Okay, one important thing about um, adrenal cortex which I would like to highlight is adrenal cortex में एक point जो मैं यहाँ पे add करना चाहूँगा, just a second. So adrenal cortex यहाँ पे हुआ, ठीक है ना. यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, there can be disorders of adrenal cortex. ठीक है, मेनली दो है भाई, मेनली दो है. सबसे पहला हाइपोसिक्रीशन ऑफ ACTH, कम सिक्रीशन होगा. कम सिक्रीशन अगर हो रहा है, देयर कैन बी अ कंडीशन व्हिच इज कॉल्ड एज एडिसन्स डिसीज. ओके, एंड अगर हाइपर सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है, हाइपर सिक्रीशन, तो फिर यू हैव अ कंडीशन व्हिच इज कॉल्ड एज Cushing's disease. Just you can remember the name. In that sense it can be important. Adrenal cortex से related. Adrenal medulla इसके डायरेक्ट रेगुलेशन में है ही नहीं, तो अपन इसके बारे में डिस्कस करते नहीं हैं. अभी एडिशंस में क्या है, देयर कैन बी ब्लड का जो शुगर रहेगा वो आपका कम रहेगा. देयर कैन बी सोडियम एंड पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस्ड. वेट लॉस हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, चाहिए तो आप लिख सकते हैं ये. कशिंग्स में यू कैन हैव हायर ब्लड शुगर लेवल, okay, increased sodium concentration in the blood. There can be high blood pressure, obesity, okay, and excretion of glucose in urine which is glycosuria. So ये सारे प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं. अगर आपको चाहिए तो आप नोट डाउन कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, जो मैंने बोला फटाक से रिवाइंड कर लीजिए, आपको वो मिल जाएगा. Okay, now when we talk about this thing, now there is one part जो मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ, which is the hormones of the reproductive system, because reproduction in animals में हम लोगों ने already वो कवर किया है. जो we talked about testis, ovary, कौन से hormones क्या रिलीज करते हैं, वो सारा पार्ट वहाँ पे कवर्ड है. तो इसके वजह से वो वापस रिपीटेटिव ना हो, इसकी वजह से वो पार्ट में उस पार्ट में रख रहा हूँ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के पार्ट में. तो वहाँ पे जाके एक बार रेफर कर लेना उसको कि भाई टेस्टिस कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है, कौन से हार्मोन का क्या सिग्निफिकेंस है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, एस्ट्रोजन क्या करता है, टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है, FSH, LH, ICSH, ये सारे हार्मोन्स के बारे में डिस्कशन हम लोगों ने उस वाले चैप्टर में कर लिया. सो मैं रिपीट नहीं कर रहा इस मॉड्यूल में. आपको अगर रेफर करना है प्लीज वो वाले मॉड्यूल्स जरूर देखना, ठीक है. एक लास्ट पार्ट गाइस बच जाता है इस चैप्टर का, व्हिच इज कॉल्ड एज द हार्मोन्स ऑफ द, जो डिफ्यूज्ड ऑर्गन्स होते हैं, जो डिफ्यूज्ड पार्ट है. तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल, नाउ देयर कैन बी हार्मोन्स ऑफ किडनी, ठीक है, हार्मोन्स ऑफ किडनी. भाई किडनी के अंदर कौन से हार्मोन, देखो बहुत सारे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल रेनिन, then you have second which is called as erythropoietin, ठीक है. थर्ड इज कैल्सीट्रायोल, ठीक है. सो एक तो आपके पास रेनिन हो सकता है, इरेथ्रोपोइटिन हो सकता है, या फिर कैल्सीट्रायोल हो सकता है, ठीक है. ये सारे के सारे आपको अलग अलग हार्मोन्स अलग अलग फंक्शंस करते हैं. रेनिन कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर, इरेथ्रोपोइटिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर RBC प्रोडक्शन, कैल्सीट्रायोल इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म. हार्मोन्स ऑफ किडनी हो गया. देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज हार्मोन्स ऑफ हार्ट. अभी हार्ट एक ही हार्मोन रिलीज करता है, वो एक हार्मोन जो है दिस इज कॉल्ड एज ANF, which is called as atrial natriuretic factor, ठीक है, ये हो गया. देन तीसरा which is called as the hormones of GIT, gastrointestinal tract, ठीक है. इसके अंदर कौन से यू हैव बहुत सारे हैं. यू हैव CCK,
then you have gastrin, then you have inhibin, then you have fourth, which is called as CCK PZ, then you have something called as secretin. ठीक है, सिक्रेटिन। तो ये ऐसे 5 हॉर्मोन्स है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में है। ओवरऑल थोड़ा बहुत पता रहेगा तो भी चलेगा, डिटेल में नहीं गए तो भी चलेगा, ठीक है। सो यू हैव गैस्ट्रिन विच कैन स्टिमुलेट गैस्ट्रिक जूस प्रोडक्शन, secretin can release pancreatic juice, cholecystokinin जो CCK है it can stimulate bile juice, एंड जो पैनक्रियोजाइमिन है वो पैनक्रियाटिक जूस को स्टिमुलेट करेगा। इनहिबिन जो रहेगा वो आपके गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को स्टॉप करता है। तो ये सारे बेसिक फंक्शंस है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के हार्मोन के, ओके। और बाय चांस अगर अगर कोई हॉर्मोन्स का डेफिशिएंसी है, ओके, एक चीज आपको समझना है कि एनी डेफिशिएंसी, any deficiency of hormones, अगर कोई भी हॉर्मोन्स की कम ज़्यादा अगर कुछ हो जाता है, कोई भी डेफिशिएंसी अगर आता है कि हॉर्मोन्स का, तो देन यू कैन गिव व्हाट इज कॉल्ड एज HRT। HRT स्टैंड्स फॉर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ओके स्टूडेंट्स, दिस फिनिशेस विद द चैप्टर। मैंने एक ही मॉड्यूल में, आई गेस वी हैव कवर्ड अ लॉट। वी फिनिश्ड विद द एंटायर हॉर्मोन्स पार्ट विच वाज इंपॉर्टेंट, सो मैंने उसको एक ही मॉड्यूल में कंबाइन कर दिया है। एक बार आप देखिए, वापस रिविजिट करिए, कुछ डाउट्स रहेगा तो डेफिनेटली पूछ लीजिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स कवर्ड है, कुछ पार्ट्स मैंने इधर उधर ऑलरेडी कवर किए, तो यहाँ पे स्पेशली उसको कवर नहीं किया है। प्लीज़ वो रिस्पेक्टिव मॉड्यूल्स देख लीजिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके पूरा चैप्टर इस तरीके से खत्म हो जाता है गाइस। नेक्स्ट मॉड्यूल में वी आर स्टार्टिंग विद another interesting chapter which is called as human health and disease, so we'll be doing and discussing about it in the further upcoming lectures. Okay, so I hope this chapter was clear. Please visit from lecture 1, start watching the videos. If you have any doubts, please let us know in the comment section, we'll reply you. And if you like the effort and the video that we are putting on for students like you who are really very academically inclined and want to score well, please do consider subscribing our YouTube channel, which is YSR Academy. And if you really like our efforts, subscribe to our channel, put that bell icon on, comment on the videos so as even we will understand what your feedback is. And having said that, definitely share with your friends, students. And I'm very sure that the efforts that have been put in by the different faculty members from the physics, chemistry, mathematics, biology, and geography background, I'm sure you'll be liking it. But definitely, if you have any kind of feedbacks, please let us know. We'll be happy to receive it and inculcate whatever and whichever way it is possible. I'll see you in the next chapter, guys. Till then, take care and stay safe.